प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, इमरान खान की जान को खतरा राना सनाउल्लाह बार बार बता रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो प्रोग्राम है इमरान खान का उसे फेल किया जाए, मुलतवी किया जाए। भी अगर इमरान खान की जान को खतरा है तो तुम वहां क्या लेने के लिए बैठे हो? तुम किस चीज़ के वजीर दाखिला? अगर आपको ये इल्म है तो उसके बावजूद आप नहीं संभाल सकते तो मेरा ख्याल है फिर रिजाइन देना चाहिए। अच्छा, यकूब साहब होंगे इटली से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी यकूब साहब, क्या आज क्या कहना आपने? नहीं, जो हुक्म करते हो कर लेने कि हालात ही गल करनी है, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया, कोई सुकून आया जी? बड़ा सुकून आया, अल्लाह ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। लेकिन गल ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ लेकिन अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए है ना, अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए ना इंसान ਨੂੰ। ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਰਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ 2-3 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾ ਔਰੀਆ ਜਾਨ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਛਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2-3 ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ वही ना मुल्क के हालात पहला बदले ते ना हुण बदलने ते ना अगू बदलने की कोई उम्मीद है। तो मैं अर्ज कर रहा जे कोई बंदा पढ़े या और ये मकबूल जान साहब दी निगाहां तो गुजरे ते मैं अर्ज करना वे ये गल चंगी नहीं। तुसां जेहड़ी पहलियां 2 गल्लां कीतियां ना, ना पहला हालात चंगे रहे जदों पाकिस्तान बनिया ते ना हुण चंगे ने। लेकिन अगू जेहड़ा तुसीं कहंदे कि ना वे नहीं होने, ये नहीं कहना चाहिए। इस वास्ते कि अल्लाह दी ज़ात चाहे ते बड़िया बड़िया मुनकरां नूं, बड़िया बड़िया ज़ालमां नूं जिसले इस्लाम ने कबूल किया फिर वो कारनामे कीते ना। अल्लाह ताला चाहे तुहानूं पता ना साडी अजीम मां ने नहीं 7 वारी अल्लाह पैदा होए ना, जदों उन्हां कोलों जवानी दी गलती नाल 100 मजबूरियां होंदियां ने ते जिसले उन्हां नूं रब ने ईमान दी दौलत दित्ती है ते फिर इंतहा उन्हां कीती है। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ करदी जी, कल ਦਾ कोई पता नहीं। ਐਂ ਤੁਸੀਂ मेरा प्रोग्राम लगी हो ना गल सुन मेरी स्कीम दी, ਇਹ पता मैं गल पूरी करनी है या नहीं, मेरा ईमान नहीं। मैंने सिर्फ अल्लाह दी यकीन है, मैं कोई काम करना मैं ना इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहे। मैं बड़ा गुनाहगार जिहा देखो मैं एक चीज दसा, पढ़ जिहा बंदा एक चीज मैं दसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਨੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ और मैं किया कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जल्द बेहतरी की तरफ जाएगा। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਦਾ ਇਹਦੇ ਜਗਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਰਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਐਡਾ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ, ਐਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਾਪ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਇਨਸਾਨ इन्हां ज़ालिमां दरिंदियां। अच्छा ये दसो अल्लाह ताला उसदी मगफिरत फरमाए। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਹੈਮਸ ਸਮਿਥ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਲੰਡਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲੀਮ ਇੱਧਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸੈयद, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਤੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮੁਲਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਨਾ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਾਣ ਦੇ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਗੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈਗਾ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਾਗ ਧੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫੌਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਾਜਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਜ਼ਰਦਾ ਪਲਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇਣ। ਉਹਦੀ 9 ਤੱਕ ਅਰਬਾਂਪਤੀ, 20 ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੀਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੇਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ ਸਫਦਰ ਅਵਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਵਰਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਅਰਬਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ, ਕਬਰ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ, ਜ਼ਾਲਮੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਸੁਣ, ਉਹ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਔਲਾਦ ਇੱਕ ਫਿਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ, ਦੇਖੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 72 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦੀਆਂ ਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੋਟਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੈਡ ਪਾਏ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਰਲੀ ਬਣੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾਨ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਾਫਤ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ। ਓਏ ਹੋ, ਅੱਛਾ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਮੀਨੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਬਈ 68 ਸਾਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੂ ਕੁਆਟ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਨਿਊ ਖਾਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ? 2 ਹਫ਼ਤੇ ਠਹਿਰ ਜੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਪਾਏ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਤਾਮ ਬੰਦਿਆਲ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਏ ਰੱਬ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਖਾਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਗੈਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਪਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਖੋ ਨਾ ਜਾਗੇ ਜਾਓ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਾਨ ਮਕਬੂਲ, 3 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਮਰ ਤੇ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਦੀ 1100 ਅਰਬ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਰਦੀ ਵਾਰੀ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਤ ਡਰੇ। ਉਹ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਤੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। एक ब्रेक का किया जा रहा है, ब्रेक ले लिए फिर गलबात करनी है ना। जुड़े रहो साढ़े नाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर।
यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। यकूब साहब हमारा साथ दे रहे हैं इटली से, जहां पे इस वक्त नवाज शरीफ भी मौजूद है। अच्छा, ये बताइए जनाब यकूब साहब कि वो जो जवाई इसका है, दमाद इसका है, सफदर, कैप्टन सफदर जी एक्सीडेंट वाला ਜਿਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਮਾਈ ਬਣਨ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ। ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ, ਇਸੇ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕੁਫਰੀ ਕਲਮੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਦੀ बीवी है ना, ਇਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਬੰਦਾ। ਵਾਹ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਮਾਸਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਗਰਗਿਤ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਰੋਡ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਸੀਨ ਇਲਾਕਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ PM ਨੇ ਕਾਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੁਸਨ ਬੜਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇਕ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੁਖਲਸ ਬੰਦੇ ਬੜੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਗਮ ਕੱਲੀ ਇਟਲੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਊਦੀਆ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਤਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੇਕਅਪ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 200 ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ पे ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈयद ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ। सऊदी अरब चो कुरान मजीद हिफ्ज कीता जी, सऊदी अरब उतो कुरान पाक हिफ्ज कीता। मैं नहीं मानता बिल्कुल, मैं इस चीज के खिलाफ हाँ। मैं ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦੇ ਮੂਮਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕਾਂ ਦਾ, 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬੂਤਰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਪਲਗੂਣੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ DGI SI ਆ, ਇਹ ਬਦਲੇ DGI SPR ਬਦਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬਰ ਸ਼ਬਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਆ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੇ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਜ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿਣਾ, ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇਵੇਂ ਤੇ 100 ਕਾਤਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਏ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਮਾਂ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਦੇ 2 ਰਾਤ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਘਾਟ, ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ 8:30 ਵਜੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਸਰਗੀ ਸਰੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਰੱਬ ਕੋ ਡਰਦਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਸਿਰੇ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉੱਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ, ਵਟਵਾਣੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਪ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਗਰਦਨਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਵੀ ਸੌੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 72 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ 60 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਜੀ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਟਲੀ ਰਹੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਿਆ ਦਾ। ਕਰਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲਾ ਚੰਗ ਰਿਹਾ 7 ਸਾਲ। ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਾਨ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋੜ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਯਕੂਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਲ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਛੱਡਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਡਾਕੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਸਮ ਲਾ ਲਓ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅल्लामा इकबाल शायर ਦਾ ਸ਼ੇਰ गिरी वो हाक नापाक वहां पे जाकर खमीर था। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਵਟਾਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਸਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਸਲ ਦੀ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਪੁੱਟੋ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੁਆ ਲਾਇਆ, ਅੱਗੂ ਨਸਲ ਚਲਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਦਾ ਲੱਗੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਈਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਜਨਰਲ ਅਮੀਦ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ 4-5 ਜਨਰਲ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 4-5 ਆਖਰੀ ਲੰਘੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਕਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਰਫ, ਰਾਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਚੌਥਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ। ਜਾ ਕੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 3-4 ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤਾਨ ਨੂੰ ਬਗਿਆਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲੋ, ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਗੋ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जन्नत नसीब करे, बंदा की करे ते दसो। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात पे लोग काफ़ी परेशान हैं और इस वक्त अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मायूसी गुनाह है, उम्मीद है अच्छे दिन आएंगे और ज़रूर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। आप प्रोग्राम देखेंगे राना साहब के साथ, आज हमारे के साथ और आज पाकिस्तान के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ
बहुत अहम चीज़ें आज फिर आपके सामने रखनी है। एक तो अरशद शरीफ का जो बयान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब था वो भी सुनवाते हैं आपको। दूसरा ये कि जो जा रहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके बारे में आपको बहुत अहम मालूमात देनी है। पहले सुनते हैं ये। आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ISI भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे GHQ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई नफीस आदमी है, शरीफुल नस्ब आदमी है और हाफिज कुरान भी हैं और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है। आखिर में आपने ये अल्फाज सुने। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इज्जत बनाना बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में, और इज्जत खराब करना जिस तरह बाजवा साहब ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, नवाज शरीफ एंड कंपनी ने, जरदारी ने, ये फजल रहमान ने, और इनकी तारीफ देखे एक बंदा कर रहा है। और अरशद शरीफ जो था वो सच बोलता था और उसकी कोशिश होती थी कि जिन लोगों में कोई कमजोरी है या गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनकी भी बात करे, और उन्हीं लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाया। अब कह रहे दुबई से ताने वाने मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं, एंड पे वहीं पे मिलने हैं जहां पे आप सबको पता चल चुका है। ये जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, कल हमारी मीडिया पे ये चीजें चल रही थी कि वो हाफिज कुरान है और उनको इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, वहां पे इतनी बुराइयां हैं कि बंदा कहता है कि शायद कहीं से कोई हल्की सी चमक भी निकले, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुल्क को सीधे रास्ते पर लेके आ जाए। जो हालात बने हुए हैं, इस्लामाबाद बंद पड़ा हुआ है, इमरान खान कल कोई 8 लाख के करीब बताया जा रहा है बंदे वहां पहुंच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से खेमे लगे हुए हैं, 10,000 वॉशरूम बन गए हैं। ये किस तरफ हम चलेंगे? आप नहीं समझते इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। जिदबाजी, हरदर्मी जो आपने देखी मौजूदा गवर्नमेंट की, उससे कितने लोग मुतासर हो रहे हैं। ये जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, देखिए मैंने कभी जितने प्रोग्राम किए मैंने उन लोगों पे किए जो गलत थे, जिन लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान किया। कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपका मुल्क जो बेशुमार कुर्बानियों के साथ हासिल किया वो उन लोगों के हाथ में आ जाए जो चोर डाकू हों। अब एक और स्यापा पड़ गया जिसने ये अपने जा रहे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब, उनके जनाब वो खाते शाते निकाले हैं, 2 बंदे मुअत्तल कर दिए। ये करवाया नून लीग ने, बंदे फिर मुअत्तल। ये गरीबों आपकी कमकती आनी है, आपको ये लोग इस्तेमाल करते, आपको अकल नहीं आती। आप उस वक्त तो इस्तेमाल हो जाते कि आपके बच्चे नहीं महफूज, ये नहीं महफूज, बाद में आप मुलाजमत भी चले जाते। तो ये खुद नहीं है, अब इन्होंने बाकायदा तौर पे इन गरीबों को हमेशा इस्तेमाल किया है। इन्हीं के पैसे खाते, इन्हीं के नाम पे ये अमदाद लेते और इन्हीं को इस्तेमाल करते, इन्हीं को जेलों में डलवाते। कभी ये देखा आपने कि इनको बड़े बड़ों को कोई सजा हुई हो, इनको हार्ट अटैक होते हैं। अब कल जो तस्नीम इधर वो बंदा है जिसने शाह जो है यहाँ पे, जिसने कहा कि नवाज शरीफ पे ये इल्जामात है, और उसने और 2 बंदों का बताया कि इन्होंने कत्ल करवाए। तो कोई ना कोई बात तो होती है जो निकलती है बाहर, वरना इतने बड़े इल्जामात तो नहीं लगा सकते। अच्छा, अब मैं आपको जो बात कमेंट्स मेरे में जाए, वहां पे भी लोगों ने लिखा, मुझे मैसेज भी आए कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं इनके मुतल्लिक, एक तो मैं ये लोगों ने लिखा लेकिन हमारी खबर है कि ये तुर्किश एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं और टिकट शिकट बुक हो गई है। तारीख का मेरे इल्म में तो है, मगर मैं अभी तक ये आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सबको वैसे ही पता चल जाएगा, मगर जल्द ही ये साहब यहां से जा रहे हैं। देखिए, जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मैंने कल भी कहा था कि कौम को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और अगर वो अच्छे काम करेंगे तो कौम उन्हें हमेशा इज्जत से याद रखेगी। जिस तरह बाजवा साहब को जिल्लत और रसवाई का सामना है
क्योंकि याहिया के दौर में कहते हैं 7 करोड़ पाकिस्तानी थे उस वक्त, और वो 7 करोड़ याहिया को याद रखते, मगर जो मौजूदा साहब जा रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजा साहब, इनको 22 करोड़ लोग जिल्लत और रसवाई के नाम से याद करेंगे। इतनी तरक्की की इन्होंने। खैर, ये जनाब आपको मैं बता देता हूं कि जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको चाहिए कि इनको गिरफ्तार करे, और ये कॉमर्स में लोगों ने लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, मुझे मैसेज भी आ रहे, वो कह रहे जी इन्हें गिरफ्तार किया जाए जब ये 29 को घर जाए, वहां से बाकायदा तौर पर इन पे केस चलाया जाए, इनका नाम जो ECL में डाला जाए ताकि ये जा ना सके, और मुकम्मल तौर पर इनकी छानबीन की जाए कि ये पैसा इनके पास कहाँ से आया। अगर ये आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये काम कर देते हैं तो ये फिर देख ले कि पाकिस्तान के हीरो बन जाएंगे। एक जगह से तो कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, एक जगह से तो अगर आप कहते हैं कि हमने तब्दीली लानी है तो कहीं से तो आगाज करना पड़ेगा। एक तरफ आप देख ले कि पूरे मुल्क में बेचैनी है, दूसरी तरफ इन चोरों डाकुओं के पास दौलत कहां से आई। ये कहते हैं, उस दिन वो कह रहा था जनाब इफ्तिखार बाबर जो इनके तर्जुमान है कि जनाब ये पहले अच्छे थे, आपकी नज़र में आप बुरे बन गए। अभी जब आपने गलत काम किया तो उस वक्त ही बुरा बनेगा ना इंसान। जब तक आप अच्छे काम करते रहेंगे कौन आपको बुरा कहता है। और एक और भी, वो दोनों के जो नदीम वो आई सी, वो जो बाबर इफ्तिखार और दूसरा नदीम था, लोग कह रहे उनको भी साथ ले लो, ये तोहफे मेरे गले आप डाल के जा रहे हो तो इनको भी साथ ले जाओ। ये है इज्जत इन लोगों की। और लोगों ने जनाब नफल पड़े हैं शुक्राने के, ये देखे उन्होंने कहा इस अजाब से जान छूट रही है, और इसके इरादे बड़े खतरनाक थे। एंड तक इसका प्रोग्राम था कि किसी तरह मार्शल लगा दे। इमरान खान ने कोई इसकी गेम नहीं चलने दी, इमरान खान ने कोई इसकी गेम कामयाब नहीं होने दी। कल भी जो साइन हुए हैं ये भी एक सियासी गेम थी, क्योंकि मेरिट पे वो बंदा आया, ठीक है वो रिटायर हो रहा था, मगर उसका माजी बेदाग है, वो एक शरीफ आदमी है, और यही वजह है कि शायद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सुन ली। ठीक है, इसके मुतहत काम करता रहा, मगर जो हालात मौजूदा चल रहे इस वक्त वो देख के मेरा नहीं ख्याल कि वो इसके नक्शे कदम पे चलेगा। कोई भी अगर गलत रास्ते पे चलता है तो औलाद भी उसके, अगर औलाद को अकल है समझ है तो वो भी बाप के नक्शे कदम पे नहीं चलता। वो कहती है ये बाप गलत चल रहा है, मगर जिनको अकल नहीं समझ नहीं वो फिर चोर का बेटा चोर बनता है। मगर कई अच्छे लोग भी होते हैं। अब जो चीज है वो सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान में तब्दीली बड़ी जरूरी है। ये जो धरने शरने ये सब कुछ जो चल रहा है, अफवाहें बेशुमार हैं इस वक्त के दिसंबर में कहाँ गवर्नमेंट आ रही है, पूरी हुकूमत आ रही है, और उसके बाद जनाब यहाँ पे इंतखाबात का ऐलान होगा, सब कुछ होगा, मगर अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ। 29 के बाद ज़ाहिर है वो लेंगे अपना चार्ज, तो फिर उसके बाद शायद, अब ये भी मैंने कल कहा था कि फौज कह रही जी हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अभी तो उनको ये मामला ठीक करने पड़ेंगे जहां से उन्होंने खराब किए, वहीं से दोबारा मामला को ठीक करना पड़ेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस की इंक्वायरी अगर आप करवा ले, और एक और चीज मैं बता दूं कि सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये काम करना होगा कि कानून के मुताबिक सब बराबर है पाकिस्तान के। अगर वो बंदे किसी इनके ऊपर FIR दर्ज करवा रहे तो करवाए, अगर वो बेगुनाह हुआ तो अदालत छोड़ देगी, अगर उसने कोई गुनाह किया हो तो उसे सजा मिलेगी। ये नहीं होता कि हम अपना बंदा नहीं देंगे, ये तब्दीली लानी पड़ेगी। जो भी लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनको तब्दील करना पड़ेगा अपने आप को, वरना और भी नुकसान होंगे। ये फौरी तौर पे, ये नहीं कि मैं टाइम नहीं हमारे पास इतना, ये चीजें बड़ी जल्दी सामने लानी पड़ेंगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। जो फौज के मामला हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वहां पे भी ISPR को तब्दील करे, और भी जो लोग आपके इल्म में हैं जो तशद्दुद करते हैं अवाम के साथ ऊपर, उनको भी तब्दील करे फौरी तौर पर, उनको मना करे कि कोई हाथ ना लगाए। जो गुमशुदा अफराद है उनको लेके आए, उनको बताएं कि ये वजह थी, इनको हमने पकड़ा हुआ था या मार दिया था, जो चीजें सब कुछ सामने लेके आए, बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से चले। ये है असल तरीका कार जो पाकिस्तान में तब्दीली का, उससे लोगों के करीब आएगा ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और आपके इल्म में है कि 65 की जंग में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने पाकिस्तान की जंग में लड़ी,
आज भी लोगों के दिलों में हुकूमत करते हैं। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं खुद कई दफ़ा उन शहदा को जब टीवी पे देखता हूँ या मीडिया पे देखता हूँ तो मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती, मगर जिन्होंने काम ठीक नहीं, कहाँ से दुआ आप उनके लिए निकालेंगे, कहाँ से पैदा करेंगे ये जज्बा कि उनके लिए आप कहें कि जनाब इनके लिए भी कोई मेरे दिल से अच्छी चीज़ निकल आए। तो ये चंद चीज़ें हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिल लेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ, जैसा कि आपके इल्म में है कि सोशल मीडिया पे भी इस वक्त चल रहा है कि ज़िंदगी में खुशियाँ तो बहुत मिली, मगर बाजवा साहब के जाने की खुशी सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही है। हमारे साथ होंगे राना अब्दुल रज़ाक साहब, उनसे भी पूछेंगे वो भी खुश हैं या नहीं खुश है और क्या देख रहे हैं आने वाले हालात में। जी राना साहब। जो इमेज फौज का डैमेज किया है, कम अज कम उससे तो जान छूटेगी। बाजवा साहब ने जो अमेरिका की बात मानकर जो करप्ट अनासर को सपोर्ट किया, उनको हुकूमत में लाए, हर लिहाज से उनकी सपोर्ट की, ये जो धब्बा बहुत सारी फौज पर लगाना चाहते थे वो तो नहीं लगेगा। ये तो सिर्फ उन्हीं का ये सारा खेल था, बाजवा साहब का। बाकी फौज में तो कोई ऐसा नुक्स नहीं है। मुझसे तो जान छूटी कौम की कि बाजवा साहब चले गए और अपनी जो काविशें थी या उनके जो ख्वाहिशें थी वो साथ ही ले गए। जो नए साहब आए हैं, आप समझती हैं कि कोई सबक सीखेंगे जो कुछ उनके साथ हुआ, या अभी तो मेरा ख्याल बड़ा कुछ होना बाजवा साहब के साथ, जहां भी जाएंगे जहाजों में जहां भी जाएंगे गद्दार और चोर के नारे लगेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर ये लोग जो पीछे हैं ये बाजवा साहब की कोई वारस नहीं है। ना उनको कॉपी करेंगे, वो मुल्की पॉलिसी को मद्देनजर रखेंगे, अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखेंगे और जस्टिस पर यकीन है इनका, अमन पर यकीन है और इंशाल्लाह ये बेहतरीन लोग हैं। इसीलिए इमरान खान ने ना कोई मुखालफत की है, ना कोई रुकावट बने हैं और इनको सपोर्ट किया है इमरान खान ने, सदर साहब ने। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं कि कल के फैसले के बाद लोग कुछ मुतमिन हुए हैं, पब्लिक जो है, इस लिहाज से कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गए हैं और पुराना चला गया और कुछ तब्दीली, लोगों ने उम्मीद लगाई है कि कुछ ना कुछ तब्दील होगा? जाहिर है कि जब भी कोई नया आदमी आता है तो नया रूल एंड रेगुलेशन या नया सिस्टम लाता है, उसके इरादे और उसकी नीयत और उसका जो होती जजमेंट होती है वो नई होती है, पहले की जरूरी नहीं है कि पहले तो और उनका और माइंड था, इनका और माइंड है कि ये यंग लोग हैं और इन्होंने देखा हुआ है, तजर्बाकार हैं और फिर हाफिज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन हो गई है। राना साहब, ये बताइए कि एक मसला बना हुआ है जो सबसे बड़ा है कि इमरान खान कल इस्लामाबाद आ रहा है, पिंडी आ रहा है, और दूसरी तरफ अभी तक इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई हालात खराब नजर आ रहे हैं या बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, बेहतरी की तरफ जाएंगे और अगर ये आज ही इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। और क्या है मकसद, क्या है उसका सारा जो मार्च का मकसद तो यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। अगर ये इलेक्शन मान देते हैं, अनाउंस कर देते हैं तो बात खत्म। ये अमन दे सकते हैं, खुद हुकूमत अमन दे सकती है पाकिस्तान को, जरूरी नहीं है तो मुतालबा मानने चाहिए पीटीआई। नहीं राना साहब, 29 को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है, उसके बाद शायद कुछ चेंजिंग आई। इसे गवर्नमेंट से तो उम्मीद कोई भी नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है, मगर गवर्नमेंट भी मजबूर है। ये मार्च से ज्यादा खायफ है गवर्नमेंट ने कोई ना कोई हाल निकाल रखा हुआ है। आप देखें, ये लाजमी अब अनाउंसमेंट करने पड़ेंगे इलेक्शन इनको। फर्ज करें अभी नहीं करते और वहां पे लाखों लोग आके बैठ जाते इस्लामाबाद में और पिंडी में, इस्लामाबाद बंद, पिंडी बंद। पहले मुल्क के हालात बहुत खराब हुए हैं, पहले ही वो कह रही है भूखनांग वहां पे नाच रही है, तो ये जिदबाजी में और भी नुकसान कर सकते हैं मुल्क का। मेरा ख्याल
चाहिए, क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। 1 अरब रह गया है सिर्फ इनके पास जमाशुदा पूंजी, इसलिए इनको देखना चाहिए। सारे जो अकल खिरद वाले हैं अरबाब, इनको सोचना चाहिए और मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। राणा साहब, आपके इल्म में जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो फौज के तर्जुमान ने कहा था जनाब के बेहतरी की तरफ हुए हमारे हालात। कल जो परसों तकरीर थी उसमें ये बाजा साहब कहते बेड़ा गर्क हो गया। क्या वजह है कि ये अवाम को क्यों नहीं सच बताते, ना सियासतदान बताते हैं, ना हमारे जो पहले फौजी थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसने भी सच नहीं बताया। हर चीज हम झूठ पे क्यों चलते हैं? झूठ हमारा कौमी निशान है, हम बाज़ाहिर मोमन बने हुए हैं। ये सारा कौमी निशान तो झूठ है। चोरी चकारी डाका हेरा फेरी ये तो कौमी निशान बन चुका है। ये तो जरूरी है, ये बोलते रहेंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। इनको चाहिए संजीदगी से मुल्क की तरक्की की तरफ सोचें और कुछ किरदार की तरफ तवज्जो दें और मुल्क की बेहतरी की तरफ आए। ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इनको मुल्क में अमन लाना चाहिए। इलेक्शन करा के नई गवर्नमेंट को हुकूमत देनी चाहिए, फिर उससे डिमांड करनी चाहिए कि मुल्क में बेहतरी लाए और इकोनॉमिकली वो बेहतर हो जाए। कितने फीसद हम आइन के मुताबिक मुल्क को चला रहे हैं या कानून के मुताबिक चला रहे हैं राणा साहब? नहीं, हुकूमत के कानून के मुताबिक नहीं चल रही। माइट इज राइट चल रहा है, माइट इज राइट। नहीं तो ये चीजें क्यों नहीं अब तक हमारे हुक्मरानों को समझ आ रही कि हम आइन और कानून की बातें तो करते हैं तो उसके मुताबिक चलते नहीं है? क्योंकि ये जमीन फरोश है, वतन फरोश है, ईमान फरोश है। ये इंसान नहीं है। इंसान होते तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती। राणा साहब, ये बताइए कि नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कभी वो कहते हैं कि अमेरिका जा रहा है, कभी तुर्की जाना चाहता है। आप क्या समझते हैं कि लंदन से उसका दिल भर गया, यहाँ पे इतनी जिल्लत और रसवाई उसके गले पड़ गई, अब कोई और जगह ढूंढेगा? नहीं, उसकी किस्मत में जिल्लत और रसवाई है। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, सारे डिपार्टमेंटों का बेड़ा गर्क किया है। उसने मुल्क के साथ दुश्मनी की है। इंडिया और अमेरिका का वो एजेंट है और मुल्क का बिल्कुल वफादार नहीं है। खुदा उसे और मजीद रुसवा करेगा। राणा साहब, एक और बड़ी आजकल फिर कल की चीजें सामने आ रही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह वो लगे हुए हैं इस काम में। आप क्या समझ रहे हैं कि कामयाब हो जाएंगे ये? नहीं, अब मुमकिन नहीं है। वो पहले इनका वार चल गया था, 25 लोग इन्होंने खरीद लिए थे 50 लाख में। 50 लाख में अब ऐसा नहीं होगा। अब इन्होंने मजबूत काम किया हुआ है इमरान खान ने। अच्छा, ये भी चीजें सामने आई। एतजाज हसन ने कहा कि जिस दिन गवर्नमेंट तब्दील की गई हमारी अदलिया भी उसमें मुलव्वस थी। इतना बड़ा इल्जाम अदलिया पे उसने लगाया, अगले दिन मैंने भी सुना है। तो आप क्या समझते हैं कि अदलिया को इस तरह के काम करने चाहिए? अदलिया को तो नहीं करने चाहिए, मगर जो डंडा है ना आर्मी का, वो सब डर जाते हैं उससे। आर्मी असल में तो माइट इज राइट तो आर्मी का है ना सारा सिस्टम चल रहा। तो जज वगैरह बेचारे क्या कर सकते हैं जब उनको धमकी दी जाए, उनके बच्चे किडनैप कर दिए जाएंगे, आपको कत्ल करा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। अच्छा, तो बेचारे वो डर जाते हैं। इसका मतलब डर जाते हैं तो फिर इंसाफ नहीं करना, जो कहते हैं वो कर दो, तो फिर अदल के हम नारे लगाते हैं। नहीं, डरपोक इंसान जो होता है उसने क्या करना होता है, उसे दो तो डरपोक होता है। अदल वही करता है जो खुदा से खौफ खाता है, सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखता है। ये लोगों का यकीन ही नहीं है अल्लाह पर ना रसूल पर, ये सिर्फ है पैसे वसूल पर है। कल दोबारा मैंने सुना वो जो तस्नीम बंदा सामने आया हुआ है नून लीग का, उसने कहा कि ये तो और भी लोगों के कत्ल में मुलव्वस है, नवाज शरीफ एंड कंपनी। आप समझते हैं कि ये लोगों को कत्ल करवाते रहे? ये आपको पता नहीं कि मार्केट टाउन में इन्होंने दिन दिहाड़े 14 बंदे कत्ल करवा दिए, तो पर्चा नहीं हुआ अभी तक इन लोगों का। इन्होंने तो पुलिस मुकाबलों में लाखों बंदे मरवा दिए, हजारों बंदे मरे हैं पुलिस मुकाबलों में। जिस बंदे को मरवाना हो पुलिस मुकाबले में मरवा देते थे। तो ये भी वजह हो सकती है कि अब इनकी दहशत पड़ी हुई है और इन्होंने तमाम पंजाब की पुलिस वगैरह अपने सिस्टम में की हुई है कि उनकी कमजोरियां इनके पास है। नहीं, वो तो ठीक है, मगर लोग भी तो सारे इनसे तंग हैं। इनको वोट
नहीं देता कोई भी, इसीलिए तंग है कि इनके जुर्म सारे खुल गए हैं। लोगों को पता है नून लीग का क्या तरीकेकार है और ये क्या करते रहे अवाम के साथ। राणा साहब, नून लीग के अभी भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे चंद लोग हैं, क्या उनको अकल अभी तक नहीं आई है? ये उनको पैसे दे के सोशल मीडिया पे पोस्ट लगवाते हैं। नहीं, अकल इनको है ही नहीं है। नून लीग को इन्होंने 35 साल हुकूमत की और मुल्क में इन्होंने जबर इस्तेमाल की होली खेली है, लोगों को मरवाया है, निजायज कब्जे कराए हैं, डाके मारे हैं लोग। ये तो सारे जुराइम इसने किए 35 साल में और अभी इसका बेड़ा गर्क हो गया। लोग पसंद ही नहीं करते नून लीग को। अच्छा राणा साहब, ये भी एक सवाल का जवाब दे दीजिए क्योंकि आप भी काफी सीनियर है। ये बाजवा साहब ने कहा कि बांग्लादेश जब अलहदा हुआ मशरकी पाकिस्तान, तो हमारी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी और 34,000 फौज थी कि 33,000 थी। और आप क्या समझते हैं कि उस वक्त जनरल याहिया था, वो एक डिक्टेटर था, कल बाजवा साहब ने सब कुछ सिविल लोगों पे डाल दिया, तो ये कैसे मुमकिन होता है? ये नाकाम कोशिश की है बाजवा साहब ने। जो बांग्लादेश बनाया है वो फौज ने बनाया है। महमूद दरमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़े तो सारा पता चलता है। अवाम का उसमें अमल दखल। नंबर 2 पर आता है भुट्टो, नंबर 1 पर फौज आती है, दूसरे नंबर पर भुट्टो आता है जिसने कहा था हम इधर तुम उधर। उसके बाद अवाम का या सिविलियन का क्या कसूर है? अगर इतनी फौज इनकी कमजोर थी, 92,000 ये जंगी कैदी क्यों हुए थे? इन लोगों ने पीछे से सप्लाई भी बंद हो गई थी। अमेरिका के बैरी बेड़े पर इन्होंने असार किया, वो भी नहीं पहुंचा। मतलब ये सारी फौज की पॉलिसी थी। टिक्का खान कहता था हमें जमीन चाहिए, हमें लोग नहीं चाहिए। इन लोगों ने बड़े जुल्म किए हैं मशरकी पाकिस्तान में। इनको मुजीब रहमान को हुकूमत देनी चाहिए थी जिसने डबल सीटें ली थी, डबल से भी ज्यादा सीटें ली थी भुट्टो से। भुट्टो को चहेता बनाकर ये पंजाबियों ने जुल्म किया है बांग्लादेश पर। राणा साहब, आप समझते हैं आज भी इमरान खान एक अवामी लीडर है और उसके साथ भी ये करना चाह रहे हैं सब कुछ? समझने की क्या बात है, समझ नहीं आती कि वोट ही नहीं इनको पड़ता, सारी सीटें वो ले जाता है। वो तो मौत है इनके लिए, इसीलिए तो उसे मारना चाहते हैं। अगर इमरान को नहीं मारते तो ये खुद मरने वाले हैं, ये खुद इनका जनाजा निकलने वाला है। लेकिन ये भी इतला मिल रही है, राणा साहब आके बता रहे सनाउल्लाह साहब के इमरान खान के ऊपर खतरनाक कोई हमला होने वाला है। अभी भी ये दोबारा कोई बड़ा हमला करेंगे उसके ऊपर? इनकी कोशिश तो बहुत है मगर खुदा बचाएगा उसको। वो बंदा अच्छा बंदा है, नेक है, बहादुर है, दिलेर है। वो इनकी तरह बेईमान डाकू चोर नहीं है। राणा साहब, ये डाकू चोर नहीं है। अरबर पे अपने जो ये हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके निकल आई हैं, इनके ऊपर भी इल्जाम आते हैं। सारा मलबा तो घड़ी पे गिर गया कि घड़ी की वजह से 75 साल में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। हाँ, वो तो प्रोपेगेंडा है ना। घड़ियां इससे तो ज्यादा चीजें खाई हैं। BMW खा गए, मर्सिडीज खा गई मरियम। ये सारा रिकॉर्ड निकाले तोशा खाने का। तो ये तो इमरान खान का तो ऊंट के मुंह में जीने वाली बात है। कुछ भी नहीं खाया उसने, तो उसका राइट था, उसने 10% जमा करा के बाकी बेच ली, उसको नहीं चाहिए थी। लेकिन ये इतना बड़ा इशू इन्होंने बना दिया कि उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने शुरू कर दिए। हाँ, ये मीडिया ट्रायल है ना। जितना झूठ बोलोगे ज्यादा, उतना ही लोगों को ज्यादा पता चलेगा। लोग बार बार झूठ सुनकर सच समझने लग जाते हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने जुर्म किए हैं वो तो आप लिख भी नहीं सकते, इतने बड़े जुर्म किए इन लोगों ने। राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। कल मैं पार्लियामेंट में बैठे लोगों के देख रहा था हालात, उनको नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम भी नहीं आ रहा था। शायद आपने भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी हो। आप क्या समझते कि हमारे जो लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, जिनको बात करना नहीं आते, वो कौम के फैसले किस तरह कर सकते हैं? राणा साहब मुझे ये बताएं। हमारी कौम MP MA ने ये कैरेक्टर वाइज अगर इनको चेक किया जाए तो इतने बदतरीन और इतने बद इखलाक है कि इन लोगों के पास इखलाक का जर्रा भी नहीं है। इनको तमीज नहीं है। पार्लियामेंट में को गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था। ये लोग मुसलमान भी नहीं है, ये लोग इंसान भी नहीं है, ये लोग इंसानों से बदतर हैं। कुत्ता वफादार होता है, ये मुल्क के वफादार भी नहीं है, उससे भी बदतर हैं ये लोग।
अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की कि वो पार्लियामेंट में बैठा और उसकी उम्र देखी, और वो जो अल्फाज मैंने सुने बाद में थे, मैंने पहले नहीं सुने, मैंने अपने स्टेटस पे लगा दिया, जैसे ही मैंने वो सुना मैंने डिलीट की फौरी तौर पे। ये इनके इतनी उम्र में भी जाके इनको बोलने की तमीज नहीं, तहजीब नहीं, वहां खवातीन बैठी होगी, वो भी ऐसे की होती है, वो भी उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस तरह मर्जी को बोलता रहे। नहीं नहीं, ये सारी एक ही थैली के चक्के बट्टे हैं। ये देखे, सॉरी, ये बदकार हैं, जानी हैं, शराबी हैं, लौड़ेबाज हैं, चोर हैं, डाकू हैं, किडनैपर हैं। ऐसे लोगों को कोई क्या पता इखलाक का? इन लोगों को क्या पता इस्लाम का? इन लोगों को क्या पता नमाज का? ये सूअर है, सूअर से भी बदतर है ये लोग। इनके कैरेक्टर देखे, इनकी कोठियां देखे, इनके जुर्म देखे, इनके इलाके में जाके इनकी देखे बदनामी क्या क्या हुई है। मैं जानता हूँ इनकी सोच क्या है, इसीलिए मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। ये लोग बद किरदार है बिल्कुल। राणा साहब, ये तब्दीली अवाम अब चाहती है कि इस तरह के लोगों से जान छुड़ाई जाए, ये जाहल जो लोग हैं। एक तो ये बताइए कि तालीम का म्यार हमारा बड़ा खराब हो गया दिन ब दिन, और जिसकी वजह से अखलाकियात भी खराब होती जा रही हैं। अखलाकियात तो इसलिए खराब हो रही है कि हमारा जो आलम है, दीन का जो आलम है, वो भी बद किरदार हो चुका है। मस्जिद के साथ एक हुजरा बनाया हुआ होता है जो वो सारा बद किरदारी पर इस्तेमाल होता है, और ये सारे लोग नजायज काबज करके जगह मस्जिदें बनाते हैं, और ये उशर ज़कात खा जाते हैं, और फिर बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, उनसे बदकारी करते हैं, और कौम को क्या जाता है मैसेज? सारी कौम ऐसी हो चुकी है, याची में मुब्तला है, इनको कोई पता नहीं है कि दीन क्या कहता है। ये लोग बद किरदार हैं, इसीलिए मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। राशि हैं, मुर्तशी हैं, मिलावटबाज हैं, 2 नंबर दवाइयां बनाते हैं, हर एक काम 2 नंबर होते हैं, गरीब पर जुल्म करते हैं, और गरीब आवाम मर रही है, और ये मौजे कर रहे हैं। हर बंदा बाजारों में फिर रहा है और अपनी करोड़ों की कोठी बना रहा है, असासे बना रहा है। ये हमारे यहाँ रिवाज बन चुका है। राणा साहब, सरदारी साहब क्या क्या रोल देख रहे हैं आप अब? सरदारी का भी एंड होने वाला है। बेचारा चाह की प्याली नहीं उठा के पी सकता, वो सिर्फ अमरीश का किरदार अदा कर रहा है। और फजल रहमान तो आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान बनना चाहिए, उसका तो कैरेक्टर ही नहीं है कोई भी। राणा साहब, ये मुझे बताइए कि बाजवा साहब, आपके ख्याल में, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तो टिकट बुक हो चुकी है, उड़ान भरने वाले हैं वहां से, तो आप समझते हैं कि कोई 2-4 दिन टिक जाएंगे या निकल जाएंगे नीवे नीवे होके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2-4 दिन रहे, हफ्ता रहे, महीना रहे, रह सकते हैं, वो तो बड़ी। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि इस पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, कोर्ट मार्शल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इससे हिसाब लेना चाहिए, ये अरबों रुपए कहाँ से आए। कोई किसी की हिम्मत है कि कोई ले इससे हिसाब? इमरान खान के अलावा कोई नहीं इनके पास मर्द मोहम्मद जो इन पर मुकदमा बना सके। मुशर्रफ पर कोई मुकदमा बना है आज तक? ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन कहीं से तो आगाज करना पड़ेगा राणा साहब, सब कुछ ठीक करने के लिए। तो खुदा ताला ऐसी हवा चलाएगा इन जालिमों के लिए, कोई मर्द मोहम्मद आएगा और इनका कच्चा चट्टा सारा साफ कर देगा। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने टाइम दिया। 9 ओके, थैंक यू। नाज़रीन, यही जो कुछ अभी राणा साहब ने बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बताया है, हमारी कौम को समझना चाहिए। अभी भी गौर करना चाहिए कि जिस तरह के पार्लियामेंट में लीडर, और जिस तरह वो कल अगर आपने अल्फाज सुने हो तो आपको भी शर्म आ जाएगी। जो जाहल लोग वहां पे पहुंचाए हुए हैं, इनसे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, अखलाकी हालत को बेहतर करना पड़ेगा। इन लोगों ने खाक लोगों की तरबियत करनी है, खाक इन्होंने पार्लियामेंट में जाके लोगों के मुस्तकबिल के फैसले करने। इनका तो अपना बेड़ा गर्क हुआ, ये तो खुद बर्बाद हो चुके हैं। आज की बात नहीं, जब से पाकिस्तान देख लें हालात खराब हुए। भट्टो की पार्लियामेंट में भी शराबी कबाबी थे, ये भी हरामखोर पहुंच गए हैं। जब तक वहां पे कोई चंद अच्छे लोग नहीं आएंगे जो इनको तवज्जो दिलाएंगे कि आप इंसान के बच्चे बने और ऐसी गुफ्तगू ना करें, उस वक्त तक हमारी हालत नहीं बदल सकती। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है, वो कोई पावरफुल बंदा ही कर सकता है। जिस तरह राणा साहब ने बताया, अल्लाह ताला किसी को भी ताकत दे सकता है और कहीं से भी ये काम शुरू हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।